Hello friends, welcome back to Cooking Creeds. Today I think we should go and try something really exciting. Not just any dish or just any cuisine, but I'm sure it's everyone's favorite pizza. And that also, not just any pizza. Let's try cheese bust pizza. This is going to be a treat for the vegetarians and non-vegetarians because today we are going to make cheese bust pizza. So चलिए शुरू करते हैं हम cheese bust pizza बनाना. So without wasting any time, let's get into the kitchen. To make the pizza, first thing we have to do is to make the dough. So सबसे पहले हम पिज़्ज़ा बनाने के लिए आटा गूंदेंगे, जिसमें मैंने यहाँ पे अराउंड 450 ग्राम्स ऑफ ऑल पर्पस फ्लावर जो कि मैदा है वो ली है. उसमें हम डालेंगे यहाँ पे सॉल्ट. उसके बाद में ये मैंने लिया है यहाँ ईस्ट. ये इंस्टेंट ईस्ट है. अगर आपके पास इंस्टेंट नहीं है, एक्टिव है, तो उसको आपको ल्यूकवार्म पानी में डाल के विथ शुगर, पहले शुगर डालनी है पानी में, फिर ईस्ट डालनी है और 10 मिनट के लिए उसको राइज होने देना है. बट यहाँ पे मैं इंस्टेंट ईस्ट यूज़ कर रही हूँ. सो सिंस आई एम यूजिंग योर इंस्टेंट ईस्ट, आई कैन डायरेक्टली पुट दिस and then I will put sugar. Now we need to knead the dough, but I'm getting a little lazy, so I'm going to do it into my processor. और नहीं तो आप इसको अपने हाथ से गूंद सकते हैं. अगर आटा गूंदने की मशीन है तो आप आटा गूंदने की मशीन से गूंद सकते हैं. ये सब मिक्स होने के बाद में आपको गूंदना है. यहाँ पे मैंने अराउंड 150 ml पानी लिया है. सो मैं पानी से गूंदूंगी और अगर ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा कम या ज़्यादा पानी आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं. हमें इसका डो ना बहुत ज़्यादा कड़क चाहिए, एक मीडियम सॉफ्ट डो हमें बनाना है. सो नाउ आई विल नीड द डो. सो आफ्टर नीडिंग दिस इज़ हाउ इट लुक्स. मैंने मशीन में किया था. ऐसा करने के बाद में फिर हम थोड़ा सा तेल इसको लगा देंगे. आटा गूंदते में मैंने 2 टेबलस्पून तेल भी डाला था. एक दफ़ा आटा गूंद गया था. तो अब हम इसको राइस होने के लिए छोड़ देंगे और कम से कम 1.5 से 2 घंटा हम इसको कवर करके और रख देंगे. जब ये राइस होगा तो हम अपना पिज़्ज़ा बनाएंगे. सो इस तरह मैंने प्लास्टिक रैप किया हुआ है. आई हैव पुट अ प्लास्टिक रैप ऑन दिस. इफ़ यू वांट यू कैन कवर इट विद द किचन टॉवल, सम नैपकिन और सम lid so that it gets space to rise up. Normally for the cheese bust pizza we can spread cheese spread, but here I am going to prepare my own cheese spread. For that you can take a cheese spread ready also, which is there. So to the pan we will add some milk and we will add the cornstarch. Cornstarch thickens it, that's why we are adding this to it. Because we are making our own cheese spread, so I added a cornstarch to the milk. आप रेडीमेड चीज़ स्प्रेड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम बना रहे हैं अपना खुद की रेसिपी से चीज़ स्प्रेड. इसमें मैंने कॉर्नस्टार्च डाला है. उसके बाद हम इसमें प्रोसेस्ड चीज़ डाल देंगे, ग्रेटेड. Now if you can see the cheese spread is ready. अब ये cheese spread ready हो गया है. इसको ज़्यादातर जब हम चिकन चीज़ बस्ट पिज़्ज़ा बनाते हैं तो इसी टाइप की चीज़ अंदर यूज़ होती है. and it's also called as filler cheese because if you put the other cheese mostly it comes out. So the best trick is that after this is made you put it in the fridge, let it be cold so that when we put into the hot oven the cheese does not melt and come out. So हम इसको फ्रिज में रख देंगे थोड़ा रूम टेम्परेचर आने के बाद में और ये हमारा चीज़ स्प्रेड रेडी है. और ठंडा होने के बाद में ये और थिक हो जाएगा, विच इज़ द कंसिस्टेंसी वी आर लुकिंग फॉर. सो
our cheese is ready. Now we will quickly prepare the toppings. For that I have taken cubes of chicken. This is red chili powder, garlic powder, oregano, and these are bell peppers of different color, and onion. So let's quickly get started. So quickly get started for making the toppings. These are the chicken cubes I have taken. This is red chili powder, garlic powder, oregano. These are different color of bell pepper and onion. So let's quickly get started. Now we'll add the oil to the pan. Quickly add the chicken pieces, the cubes. We have to saute this till the chicken is done. The chicken is leaving water. जब तक चिकन गलता नहीं, हमें इसको थोड़ा भूनना है, और जैसे ही चिकन गल जाएगा हम इसमें अपने बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो डाल देंगे. तो अभी थोड़ा पानी है और हम इस चिकन को अच्छे से पका लेते हैं. Now we will add the garlic powder. तो इसमें हम गार्लिक का जो पाउडर है वो मिलाएंगे. अगर गार्लिक पाउडर नहीं है तो यू कैन ऑल्सो ऐड grind garlic, the crushed garlic you can add. Now we will add the peppers, onion. We'll add this chili powder. Chili can be as per your taste. Some oregano, and we'll saute them. Just mix. Give it a mix for about 2 minutes. We'll sprinkle some salt. So now this is our topping. The topping is ready. Now we'll put off the flame. We don't want the bell peppers to get fully cooked. And lastly, we will add a bit of some drops of lemon juice. So here goes some lemon juice. I will be preparing one topping for the veg pizza also. It will be absolutely same. The only difference will be that we will have to instead of chicken, we will be using paneer for that. Now we are making the veg topping. I put on the gas. We'll add a bit of oil to it, just about a tablespoon. Now to that we will be adding the paneer, cottage cheese. तो हम फटाफट एक वेज टॉपिंग भी बना लेते हैं, जिसके लिए मैं पनीर को थोड़ा सौटे करूँगी. So now the paneer has become golden. We'll just sprinkle some dry spices. That's chili powder, some garam masala powder. We'll add some oreganos to it. We'll add some coriander powder. Now we'll add some salt. Just sprinkle a little bit. Give it a good mix. So this is our topping for the veg one. You can do any sort of topping, spices, anything you can put in that. We'll add these bell peppers and onion, and our veg topping is also ready. We'll also add 1 or 2 drops of lemon juice, and our veg topping is ready. Now it's almost 2 hours, so as you can see it has risen up very well. बहुत अच्छे से ये राइस हो गया है. 1-2 घंटे के बाद I'm going to punch it to remove the air. So here, as you can see, I have divided the dough into 4 portions. 2 are big and 2 are small. This is the way how we tuck, and we will keep it and let it rise. These 2 we'll let it rise. These are the smaller portions, जिसका कि मैं ये छोटे पोर्शंस का मैं एक रोटी जैसी बनाऊंगी ऊपर के लिए, क्योंकि हम ये चीज़ बस्ट पिज़्ज़ा बना रहे हैं, तो ऊपर का हम एक छोटी सी रोटी बना के उसको कवर करना होगा मेन जो पिज़्ज़ा बनेगा. So as I told you, these are the small portions. I will make it into a form of round roti, and I will cover on top of the bigger pizza. To cook the upper
crust, we need to cook this first on the pan. We'll just cook it about 30% and then we will in the oven or in the right now I'll also be showing you in the pan. So उसके लिए पहले हमें इसको थोड़ा सा पकाना पड़ेगा. So अब हम इसको अपने पैन पे डाल देंगे. बहुत ज़्यादा हमें नहीं पकाना है, थोड़ा ही कुक करना है इसको. हम इसको फ्लिप कर देंगे. वेरी केयरफुली यू हैव टू फ्लिप दिस. That is all. You don't have to cook more than that. So this is how, this much only we have to cook and we will remove it. यहाँ पे मैंने एक बड़ा पतीला रख दिया है जो कि हम पैन पिज़्ज़ा करने वाले हैं, वो मैं इसमें करूँगी. दिस विल वर्क लाइक एन ओवन. सो ये हम फ्लेम पे करेंगे और एक पिज़्ज़ा हम ओवन में करेंगे. इसमें मैंने सॉल्ट डाल दिया है. I have added salt. This is for people who don't have an oven at home. I have added salt. I have kept one ring to keep the pan inside, and we'll preheat this for about 15 to 20 minutes. So now after 20 minutes, we'll start preparing the pizza. We'll start with the veg pizza first. So we'll dust some flour. Try to do this with our hand. This I'm going to do this in the pan. ये हम pan में करेंगे, which will work like an oven for us. I have shown the pan. I kept the vessel, big vessel I kept for preheating. So veg pizza के लिए हम थोड़ा इसको पहले बेल लेंगे before we put in the pan. हम इसको हाथ से भी बढ़ा सकते हैं, but just to get quickly done, we'll dust some flour again above it and below it. So this is how we will do. एक फोक से हम इसमें इस तरह थोड़ा थोड़ा पंचर कर देंगे ताकि ये पूरी तरीके से फूले नहीं, क्योंकि हमें ये बेस बहुत ज़्यादा मोटा नहीं चाहिए. बस. So now we will place this on the pan which we are using for grilling. And we'll keep this aside. Now we will take. अब हमने जो चीज़ बनाई थी हम इस पर स्प्रेड करेंगे. मैंने फ्रिज में रख दी थी ये चीज़, सो डैट हम जब ओवन में इसको डालेंगे तो ये बहुत जल्दी मेल्ट नहीं होगी, नहीं तो पिज़्ज़ा से बाहर निकल आती है चीज़. सो नाउ वी विल स्प्रेड दिस चीज़ ऑल ओवर द पिज़्ज़ा ब्रेड विच वी हैव कुक्ड लिटिल बिट. सो नाउ वी हैव स्प्रेड द चीज़ ऑल ओवर द पिज़्ज़ा ब्रेड. ये पिज़्ज़ा ब्रेड पे हमने जो चीज़ बनाई थी वो लगा दी है. अब इसको हम ये वाली ब्रेड पे बहुत अच्छे से रख देंगे. Now we will seal this like this from all the sides. तो हमारी चीज़ नीचे है. अब हम इस पे पिज़्ज़ा सॉस स्प्रेड करेंगे. हमारे पास सबको थिक क्रस्ट पसंद है, सो आई लीव द क्रस्ट अ बिट थिक, बट इफ यू लाइक थिन क्रस्ट यू कैन roll it thin. Now we will add the mozzarella cheese. इसके बाद हमने जो ये टॉपिंग बनाई थी हम ये टॉपिंग डालेंगे, पनीर और कैप्सिकम बेल पेपर्स जो हैं उसकी.
Wow, this looks so colorful. Since this was a cheese burst pizza, we have to put loads of cheese in this. थोड़े ऑलिव्स लगा देंगे हम. अगर आपके पास ग्रीन ऑलिव्स हो तो आप ग्रीन लगा दें. यहाँ मैं ब्लैक ऑलिव्स लगा रही हूँ. We'll add some more bell pepper to it. Here goes some more mozzarella cheese. Lots of cheese goes in this. So हमने बहुत अच्छे से ये सब तरफ से चीज़ से अब रेडी कर दिया. अब now this will go for baking. बेकिंग के लिए जैसे मैंने आपको बताया, हमने अपना एक पैन रखा है प्री हीट के लिए, बड़ा पतीला. आपको कोई भी पुराना पतीला हो तो बेटर है, क्योंकि बेकिंग में बर्तन काफ़ी ख़राब हो जाते हैं. सो वो मैंने सॉल्ट डाल के प्री हीट करने रख दिया था. अब हम इसको उस अवन में, पतीले के अवन में हम इसको बेक करने के लिए 20 मिनट्स के लिए रखें. एज यू कैन सी ये बहुत गर्म हो चुका है. बहुत ध्यान से हमें इसको रखना है. बी केयरफुल व्हाइल प्लेसिंग दिस. और अब हम इसको 20 मिनट्स के लिए ढक के और रख देंगे. अब इसको हम 20 मिनट के बाद देखेंगे कम से कम. Now for this non-veg pizza, I have rolled the pizza bread. To that I have applied this on the cooked pizza bread. I have applied the cheese. We will put it like this, stick it, and same like we did for the veg pizza, same way we will do. अब इस पे हम पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे जो हमने बनाया था. This will go in the oven for on 200 degrees for about 20 minutes. इस पे जाएगी चीज़. मैं यहाँ श्रेडेड मोज़रेला चीज़ यूज़ कर रही हूँ. अब हम इस पे डालेंगे टॉपिंग जो हमने बनाई थी चिकन की. हम और चीज़ डालेंगे इस पे. सब ऑलिव्स. थोड़ा सा हाथ से ऐसे प्रेस कर देना इसको. बस अब हम इसको सीधा अवन में डालेंगे 200 डिग्री फॉर अबाउट 20 मिनट. फिर ब्रश सम ऑलिव ऑयल ऑन द कॉर्नर्स. मैंने वो वेज पिज़्ज़ा में भी साइड्स में ऑलिव ऑयल थोड़ा ब्रश कर दिया था. तो इस तरह ऑलिव ऑयल को आप साइड्स में कॉर्नर्स पे ब्रश कर दें. Putting this into the oven. 20 मिनट्स हो गए हैं. हम अपना जो पतीले में हमने पिज़्ज़ा रखा था उसको हम देखते हैं. वाओ, सी आप देखिए कितना ज़बरदस्त कलर है ये. इट्स कम आउट वेरी वेरी गुड. वेरी केयरफुली वी विल रिमूव इट फ्रॉम दिस. सो हमारा वेज पिज़्ज़ा अब रेडी है. अब हम वेट कर रहे हैं अपने अवन के पिज़्ज़ा के लिए. मैंने ये भी बताया था कि क्योंकि मेरे घर में सबको फैट क्रस्ट, थिक क्रस्ट पसंद है, तो मैंने थिक क्रस्ट पिज़्ज़ा बनाया है. अगर आपको थिन क्रस्ट पसंद है तो आप एकदम पतला बेल के उसको थिन क्रस्ट भी बना सकते हैं. सो नाउ वेज पिज़्ज़ा इज़ रेडी. वी विल वेट फॉर द नॉन वेज. अब हम अपना पिज़्ज़ा वेज वाला काटेंगे. नाउ लुक एट दिस. लुक एट दैट बर्स्ट. चीज़ कमिंग आउट फ्रॉम ऑल द साइड्स. अब हमारा नॉन वेज पिज़्ज़ा भी रेडी है.
बहुत अच्छा परफेक्ट हुआ है ये। इफ़ यू सी, देखिए चीज़, वाओ, लुक एट दिस। चीज़ बस्ट पिज़्ज़ा इज़ रेडी टू ईट।